اپنی پارٹی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایک سائلنٹ مارچ، بلیک پٹیاں لگا کر ایک سائلنٹ مارچ ایز اے پروٹیسٹ اگینسٹ دس ڈرافٹ پرپوزل 29 تاریخ کو کرے گی. We had to postpone it by two days because 27th and 28th happens to be snow prediction. میڈیا کو ہم بتائیں گے کہاں پر ہوگا. It will be only, it will be a non-violent thing only to show that ہماری آوازیں بند کی گئی ہیں, اور شاید ہم فورتھ پلر آف ڈیموکریسی کے لیے بھی اس دن یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جب ہم منہ اپنے بند بلیک پٹیوں سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی زبانیں بھی بند کی گئی ہیں, کیونکہ آپ لوگ بھی نہیں بول سکتے ہو جو سچ ہے, نہ رپورٹ کر سکتے ہو جو لوگوں کی امنگیں ہیں. ہماری باقی جماعتیں بھی ہیں اس خطے میں. افسوس ہے کہ ہم تو اس کے کوئی نہ ایسوسیٹ ممبر ہیں, نہ ہم کوئی ایسا سٹیٹس کلیم کر سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں بھی اس میں رکھا جائے, لیکن جن کو یہ ذمہ داریاں تھیں, کیوں ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دے کے الیکٹ کیا تھا, وہ الیکٹڈ نمائندے تھے, ان کی فلپ فلاپ سے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو نقصان ہو گیا. کیوں پہلے یہ کہنا کہ ہم نہیں جائیں گے, اگر گئے ہوتے تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا, اور اب جب گئے ہیں, اب کس کو سچ مانے, کس کی بات پہ مانے. وہاں جو باقی ممبر ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے اندر ایگری کیا اور باہر اب دوسری کہانی کہہ رہے ہیں. خیر, میں زیادہ اس وقت اس اندرونی جو ہماری اپنی یہاں کی سیاست ہے اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا, کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو اکٹھے دیکھا جانا چاہیے. وی آل شوڈ بی سین ٹوگیدر ان ڈیمانڈنگ دا رائٹس آف آور پیپل, جو حق ہمارے لوگوں کا ہے. اور اس میں ہم اپنا سب بھید بھاؤ چھوڑ کے سب کو کہتے ہیں کہ اپنا اپنا فورس استعمال کرو, اپنا اپنا وزن استعمال کرو. کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کا دلی کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی واسطہ نہیں ہے. کیوں سب اقتدار میں رہے ہیں. یہ سچ بولنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تو سب رہے ہیں. یہ تو وہ جماعتیں ہیں, ان کا تو بی جے پی کے ساتھ بھی اتحاد رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ان کو, چلو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں آپ کے اتحاد بی جے پی کے ساتھ رہے کسی کے یا نہیں رہے, لیکن اس وقت ہم سب کا وزن ہے. آپ سب کا ہم سے زیادہ وزن ہے, ہمارا تھوڑا کم ہے. ہمارے بھی جتنا وزن ہوگا ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی امپریس کریں وہاں کہ صاحب انصاف کریے. اور میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے گڑ گڑانا بھی پڑے گا, اگر مجھے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں گے, میں کسی پریسٹیج پہ نہیں بیٹھا ہوں. اگر پریسٹیج پہ بیٹھنا ہوتا تو پھر سیاست نہیں کرتا, گھر میں بیٹھتے. ہم کریں گے جو ہم تک ہے, لیکن باقی لیڈروں سے بھی گزارش ہے کہ سب لوگ کرو. یہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی بات نہیں کرنے چاہتے ہیں ہم کہ کس کو کریڈٹ ملے گا کس کو ڈسکریڈٹ ملے گا, کیوں یہ ہماری جنریشن کا مسئلہ ہے, یہ امن و امان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے کمیونل ہارمنی کا مسئلہ ہے. باقی یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ بات کریں گے تو ریاست یا یو ٹی میں 72% تو مسلمان ہیں, جموں میں بھی جب آپ بات کریں گے تو 56% تو مسلمان ہیں. اس لیے ہم یہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ جو پروجیکٹ ایک نیشنل میڈیا یہاں کر رہا ہے, کیونکہ کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کچھ اخبارات میں دیکھا, کچھ ڈسکشنز میں دیکھا کہ صاحب یہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ انہی کی بولی جا رہی ہے نا, بی جے پی کی. بی جے پی is not the sole custodian of this country. It has not taken over the rights of all the people. There are people who do not belong to BJP, اور جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, we don't belong to BJP. Majority of people in Jammu and Kashmir, they have no connection with BJP. So ہم اس سیکولر سماج کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ صاحب غلط ہو رہا ہے, یہ ہندوستان کے ہت میں نہیں ہو رہا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے. اور اسی لیے ہمیں امید ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں انٹروین کریے. ہوم منسٹر صاحب سے انٹروینشن کی یہ ہے
क्योंकि इस वक्त उनका डायरेक्टेड रूल है. शुक्रिया. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. सर 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे. पहला सवाल डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर ही रहेगा कि इफ इन केस डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट फाइल करती है और किसी तरह का चेंज एक्सेप्ट नहीं करती, उस केस में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? सेकेंडली, जब आप कहते हैं कि तमाम पार्टियों को एक साथ आकर एक आवाज़ बननी चाहिए, तो क्या इसको ये माना जाए कि आप एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट एक टॉपिक पर एक स्टैंड पर आकर खड़े हो जाएं? और अगर ऐसा है तो क्या आप डायलॉग इनिशिएट करेंगे हम पार्टी से? देखिए साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं कि हम कहें कि हम डायलॉग इनिशिएट करेंगे, बट वी आर ओपन टू इट, क्योंकि कॉमन कॉज है. ये लिमिटेड सा कॉमन कॉज है कि सब लोगों की सही नुमाइंदगी नहीं की गई. 2011 का सेंसस जो कहता है उसके हिसाब से करो. हाँ, अगर कोई हिली ट्रैक्ट कहीं पर है, आपको लगता है कि साहब डोंट कंपेयर इट कि साहब गुरेज और करना को छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो शर्म की बात है जो ये कहेगा क्योंकि गुरेज और इसको दिया गई है. तो फिर काफ़ी जगहों पर आप उठाइए, जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में कितनी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ की गई. सो हम, इट इज़ नॉट जम्मू अगेंस्ट श्रीनगर, आई एम नॉट टॉकिंग दैट. तो इसलिए हम कहते हैं कि साहब बड़ी जमातें हैं, बड़े लीडर हैं, और जिनकी रिस्पॉन्सिबल जो मेंबर्स हैं, उन्होंने तो लोगों से वोट इसी पे लिया है ना कि हम प्रोटेक्ट करेंगे. प्रोटेक्शन में तो नहीं कर सके, लेकिन अब इसमें जहाँ वो उनकी लीगल पोजीशन है, दे शुड प्ले देयर पार्ट. एंड इफ़ दे थिंक हमारा कोई रोल है, वी आर ओपन टू इट. हमें कोई ऐसा ये नहीं है विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ एनी अलायंस और एनीथिंग. क्यों नहीं, वी आर ऑल, इस मुद्दे पे हम सब एक है. मुझे जम्मू से अगर पैंथर्स पार्टी कहेगी आओ साहब यहाँ मसला है, मुझे कश्मीर से कोई भी जमात कहेगी, हमें कोई, हम किसी प्रेस्टेज, हम ज़ात के लिए नहीं है, अपनी पार्टी किसी के ज़ात के लिए नहीं है और न किसी की ज़ात की है. नंबर 1. नंबर 2, आपका सवाल था कि अगर अपनी पार्टी अगर कल को डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करता. देखिए साहब, वी शुड बी पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने भी किया होगा. अगर 3 दिन चुप बैठे हैं तो ऐसा ही तो नहीं बिल्कुल चुप बैठे हैं कि आपने देखा पहले दिन आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट गिविंग यू what was brewing up in our hearts, what was brewing up in our minds, that was brewing up in every resident of Jammu and Kashmir's minds. I represented that before you. I gave vent to that. So there must have been contracts. There must have been contracts. You are all intelligent people. So we believe that there should be something positive. We hope so. जब नहीं होगा तो always we can always come sit together and always talk to you. You will be the first ones to know what would be our stand there. मौजूदा रजीम के हवाले से मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा. मौजूदा रजीम ने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं, अभी तक तो ताहाल ये नहीं लगा कि उन्होंने कोई फैसला वापस लिया है. हदबंदी कमीशन के हवाले से अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो यहाँ की मुकामी यानी कश्मीर, मैं वादी कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि अपनी पार्टी ने इससे पहले भी नई दिल्ली के साथ एक इनिशिएटिव लिया था और बात की थी ज़मीनों और नौकरियों के हवाले से. लेकिन अब एक नई आफत आई है जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के लिए. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसमें अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, मैं बताऊंगा, जहाँ तक नौकरियों का ताल्लुक है, आपको मालूम होगा उस दिन भी एक सरकारी हुक्मनामा आया बिल्कुल जिसमें क्लास 4 नौकरियाँ ही रखी गई थी. शायद अपनी पार्टी ही खाली वाहिद जमात थी जिन्होंने जाके वहाँ, उस वक्त भी हमने कोई ये नहीं कहा कि हमारे साथ साहब सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं. हम गए, रोए, पाँव पकड़े या मुक्का दिखाया, वो तो हम और हमारा खुदा ही जानता है, लेकिन चेंज तो करवाया 24 घंटे में. आज तक हमें न लोगों से क्रेडिट मांगा और ना मिला, लेकिन अपना ज़मीर हमारा खुश है कि हम जिस मकसद के लिए निकले कुछ तो हासिल किया. क्यों? हमारे लिए 5 अगस्त 2019 को सब उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों की टूट गई थी. इसी तरह ज़मीन के हवाले से जहाँ जहाँ गलत होगा, जहाँ जहाँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम इसीलिए निकले हैं कि हम कोशिश करें, अगर कुछ नहीं थोड़ा बहुत हम रिलीफ दिलाएं. बाकी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिन हालात में जम्मू कश्मीर को डाला गया है और जितने भी फैसले आज तक हम देख रहे हैं, रोज़ जो हो रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि हर चीज़ पे हम बोलते नहीं हैं. तकरीबन वी गिव आवर व्यूज़, लेकिन हम भी देखते हैं कि इताब पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही है. चाहे वो आप मीडिया वालों पे है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन पे है, चाहे वो हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ते हैं या खेलते रहते हैं, तो इताब तो है ही. हम एक
मुश्किल तरीन दौर से गुज़रे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसा शायद कभी इतना डिफ़िकल्ट दौर नहीं आया, मजमूई तौर एज अ नेशन, एज पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, आप अभी अपना जो दामन है वो छिड़ा रहे हैं, आप भी एक बड़ी पार्टी है, जबकि आपने नाम ले रहे हैं कि बड़ी पार्टीज है वो दे शुड हैव टू टेक इनिशिएटिव टू यूनाइट द ऑल पॉलिटिशियंस और रीजनल लीडर्स, तो आप क्यों नहीं इनिशिएट करते हैं? क्योंकि अभी जो बात की जा रही है 370 की, अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से वो पेंडिंग है, जबकि कोई हियरिंग भी नहीं हुई है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ज़्यादातर यही गीत अलापते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन हियरिंग के लिए कोई बात नहीं। देखिए मैं आर यू गोइंग टू सेंड द एम्बेसडर टू द अदर ओरिजिनल पार्टी? नहीं, देखिए मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, अपनी पार्टी कतन भी अपना दामन इससे नहीं छुड़ा रही है कि हम मेहनत नहीं करेंगे कि कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिले डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से। मैंने आपको कहा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई ओपनली कहेगा कि जो हमारा वज़न अपनी पार्टी का है हमने शुरू किया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने आपको कहा, मैं रात की तारीकी में कुछ नहीं करता हूँ, मैं दिन के उजाले में हर चीज़ करता हूँ, और मैं तो करूँगा इस्तेमाल। फिर क्यों गए हम दिल्ली? हम कोई अपने लिए कुर्सियाँ ढूंढने नहीं गए थे, हम कोई अपने लिए कंसेशंस ढूंढने नहीं गए थे, हम तो जम्मू कश्मीर लोगों के नुमाइंदे बन के गए थे कि लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। 5 अगस्त 2019 के बाद चुप ही था ही थी। तो हैविंग सेड दैट, चूँकि उन जमातों का एक अलायंस है, जो अलायंस मुद्दों पे बात नहीं करता है, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ खाली बात करता है। तो इसलिए मैं उनको लोगों की नज़रों में ये भी नहीं होने देता हूँ कि उनको कल लोग ये सवाल ना करें कि भाई आज तो आप अब आएंगे क्यों। उन्होंने उसी पे इमारत अपनी बनाई है, चाहे वो रेत की इमारत है या वो शीशे की इमारत है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मसला ये सबका, ये किसी का घर का नहीं है, ये साझा मसला है, हम सबका है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ही तो नुमाइंदे, हम क्यों नहीं, इसमें क्या है। हम वी आर नॉट सिटिंग ऑन दिस प्रेस्टीज। इफ दे वांट to be a part of our efforts, they are welcome. If they want us to be a part of their efforts, let them, it is for them, we will have no problem. हमें कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ क्रेडिट वही ले जाएं, हम क्रेडिट की बात भी नहीं करते हैं, कम से कम हमारे ज़मीर तो खुश हो जाएंगे। ज़मीर अपना खुश होए तो सब कुछ होता है। Thank you very much. Candid Classes organizes Education Mela on 20th of December at Candid Classes, Naugam Bypass, Srinagar. The Education Mela will include counseling session on NEET JEE. Renowned experts, doctors, KAS, IAS officers will address the audience. Also, a mega scholarship program will be held for class 9, 10th, 11th, 12th, NEET and JEE. Earn a chance to win laptop, tablet and 100% scholarship. For registration, scan QR code or you can also do on-spot registration. The Mela is supported by Reading Room Classes and IT partners are Decode Future. For further details, contact Candid Classes, Naugam Bypass or call on 1800 890 3595 9103 169 770.